Thank you very much, first of all, for the whole facilitation that you had provide. Amazing, the atmosphere is really good. The coffee and tea. आप ना एक टिकट बुक करवाइए ना वो पाकिस्तान की और इनको भिजवाइए ये बगल में जो मेरे बैठे हुए हैं। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? और जिस तरह से उसको लेकर के पूरी दुनिया में, यानी मुझे तो ओबामा का भाषण याद है जो भारत के पार्लियामेंट में आगे दिए गए थे कि हेवेंस ऑफ द टेरर। Thank you very much, first of all, for the whole facilitation that you had provide. It's a nice area that the journalists can, work easily and follow up all the screens, which was impressive also well, with all the screens that you can see what's going on and how the other rivals are just covering it. And also, the foods are good, the internet is good. So I think the only thing that we have complain about is the information is so hard to get. So that's the nature of the talks, as I understood. So we're pretty well hosted. Thank you very much. Yeah. Well, I think that we must say Pakistan did it. Bringing Iran and the United States to talks was once called impossible. Propaganda said delegations would never reach Pakistan. Saboteurs tried to spread doubt. But Pakistan delivered. At a time when the world feared a wider war, Pakistan opened the door for dialogue. No matter what the final result is, this is already a huge win for Pakistan. फूड पॉइंट और रिफ्रेशमेंट के हवाले से बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की जानब से। वेलकम फ्रॉम जिनाल कन्वेंशन सेंटर और यहाँ पर है इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से जो है वो आज ये दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दुनिया भर के 150 से जायद बैनुल अक़वामी सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद से ये कवरेज जो है वो दुनिया भर में की जा रही है। ये हुकूमत की जानब से एक छत तले जो है ये चीज़ें फराहम की गई हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के नाम उसको दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स अपनी कवरेज कर रहे हैं। इसके साथ ये पॉडकास्ट सेटअप भी आप देख सकते हैं कि पॉडकास्ट सेटअप भी लगाया है, जिसने जो गुफ्तगू करनी है वो यहाँ पे करेगा। उसके अलावा यहाँ पे बैठ के भी आप कर सकते हैं और थोड़ा सा आपको आगे लेके जाएं। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन डेस्क तो आपको दिखाना ही भूल गए थे और इसके अलावा एक वॉल आपको ये भी देखने को नजर आती है और एक पॉडकास्ट स्टूडियो ये है और ये दाएं जन्म यहाँ पे है फूड पॉइंट और रिफ्रेशमेंट के हवाले से बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की जानब से। अंदर लिए चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। अंदर भी सूरत कुछ इसी तरह से है जहाँ पर बैनुल अक़वामी मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप ये हॉल में देख रहे हैं। यहाँ पर पूरी कवरेज चल रही है, लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, ना सिर्फ लोकल मीडिया की बल्कि यहाँ पर जो है वो बैनुल अक़वामी मीडिया की भी लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। और यूँ यहाँ से जो है इस्लामाबाद से इस टाइम जो है वो ये हॉटस्पॉट है और हॉटस्पॉट होने के नाते यहाँ से पूरी कवरेज दुनिया में यहाँ से की जा रही है। Very clear that this is very well organized in such a short period of time. A lot of journalists are saying that they're impressed by how logistics have been really smooth on arrival at the airport. There's no chaos. And we're talking, I think there's over 100 journalists that have kind of parachuted into the country with just 24 hours notice. So I think the organization level is impressive. And how do you find the environment and security of Islamabad? Well, this isn't my first visit to Islamabad. And definitely traffic is smooth. I haven't encountered any security concerns. What is your first impression of Pakistan when you landed to airport? Well, it was the middle of the night when I arrived. It was quiet, clean, very nice, very neat, well manicured streets. Very nice. It's really, it's different than what people would expect. And again, this is not my first trip, so I'm talking about how I felt when I first arrived. I don't know who said Pakistan is poor, Pakistan is backwards, whatever you want to call it. Look around you guys. Hey guys, come with me. Let's ask the international delegates how would they describe Pakistan in one word. Because I'm with Isaac right now. Let's ask him how would he describe Pakistan in one word. A surprise. Pakistan in one word, fantastic. The first time I come here, I'm based in Washington DC, and the first time in Pakistan, people are super nice, hospitable, welcoming,
The country is amazing, it's green, and I'm so happy for Pakistan to host these talks because they're very high level talks. And I think to credit them for bringing the two parties together, let's hope that we will have a peace deal soon. So I'm with Denise from MTV. Let's ask her, how would she describe Pakistan in one word? Definitely green. It's one of the greenest countries in ever, like in the world. It's beautiful. Okay, I think it's an amazing country, and we are now in the convention center, which is the heart of Islamabad, and at the moment it's even the heart of the world. So it's like the center of the world. It feels amazing. The atmosphere is really good. The coffee and tea is for free. So yes, I'm in. Pakistan with one word is an experience. I mean, that's really difficult, but I'm going to go with friendliness. It's crazy how these delegates are enjoying their time in Pakistan so much. पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा। हम तो नहीं कर पाए साहब, उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए, फेलियर ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री पे हंसिए। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। अरे खुदा, एक सेकेंड है ना। आसिफ भाई सऊदी अरब में रहते हैं, आप ना एक टिकट बुक करवाइए ना वो पाकिस्तान की, और इनको भिजवाइए ये बगल में जो मेरे बैठे हुए हैं। और मैं कसम से कह रही हूं, आप सूटकेस भी पैक मत कीजिएगा विवेक भाई, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। हम सब चंदा इकट्ठा करेंगे, सब यहाँ जितने बैठे हैं, तहसीन, आनंद रंगनाथन, पाकिस्तान क्यों, कर्नल दानवीर, सब हम चंदा इकट्ठा करेंगे। आप नहीं, ईरान में आपको कोई रखेगा नहीं ना, कोई नहीं, सब रखेंगे मैडम यहाँ पे। अब कोई नहीं रखेगा ईरान का मुफ्ती एक बार मैं आपको कह रही हूँ, आप जाइए वहां पाकिस्तान, आपका सारा खर्चा 1 महीने का हम कर देंगे, उसके अलावा हम नहीं छोड़ पाएंगे। अब वो अपने ये रोकेंगे युद्ध, ये जो अपनी ड्रेस शाम से सवेरे तक नहीं रोक पा रहे हैं। शाम को कुछ और पहनते हैं, सवेरे खिसक जाता है वो। शाम को चोला कुछ और, सवेरे चोला कुछ और, हैं? ऐसे लगता है जैसे सर्कस का आदमी हो, हैं? ऐसे लगता है कि जैसे पीपीटी और एक्सेल सीट बनाने के लिए जा रहा हो ये आदमी। शाम को जनरल, सवेरे आईटी कर्मचारी। आप देखिए ना, गलत कह रहा हूं, बताइए दर्शकों, आप बताइए भाई। इनसे अगर संधि हो जाए, संधि प्रस्ताव हो जाए, बात मान लें, तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि भाई ये कर दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं, अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए। पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं, अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए। पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं, 1947 और 1971 के उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौमिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज इन बंगाली बंधुओं को उनका अधिकार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आपका इस पर कोई टेक है क्या? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के जरूर कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, हम तो देखते रह गए, और पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर इतनी बड़ी लीड ले गया, मीडिएशन कर रहा है। बताइए जरा, वहां पे यूएस ईरान दोनों आ रहे हैं, सब उनकी सुन रहे हैं। देखिए, इंडिया करता है ना करता, लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है, इसकी तकलीफ है लोगों को। मीडिएशन, अगर ये मीडिएशन मान लीजिए जिनीवा में हो रहा होता, ये कतर में हो रहा होता, ये अगर फ्रांस में हो रहा होता, लंदन में हो रहा होता, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस पाकिस्तान, खुद एक टेरर स्टेट जो है, बिल्कुल, जिस पाकिस्तान को भारत ने अपने प्रयासों से आतंकवादी देश की सूची में डलवा दिया था, और जिस तरह से उसको लेकर के पूरी दुनिया में, यानी मुझे तो ओबामा का भाषण याद है जो भारत के पार्लियामेंट में आके दे गए थे कि हेवेंस ऑफ द टेरर जो है, वी विल नॉट टॉलरेट इन द साउथ एशिया, नेबरिंग कंट्रीज, इस तरह कुछ भाषण था उन्होंने।
पाकिस्तान के लिए इंगित करते हुए कहा था, नाम तो नहीं लिया था बट इंगित किया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान आज वो पाकिस्तान शांति का मसीहा बना बैठा है। हम चाहे कितना भी कह लें लेकिन वो तो प्रचार करेगा ना इसका। भाई हर देश को अधिकार है अपने उपलब्धियों का या अपने उसका प्रचार करने का, तो पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में कहेगा कि हमने, अगर उसको कामयाबी मिल, अगर ये सीज फायर परमानेंट हो जाता है, मान लीजिए अभी तो अधर में है कि क्या निकलेगा, ईरान जाएगा कि नहीं जाएगा और क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन मान लीजिए कुछ अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकल आते हैं जो दुनिया के हक में है, तो उसका श्रेय तो लेगा, बिल्कुल लेगा। हम कितना भी अपने को कहने कि नहीं साहब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रेय तो लेगा। तकलीफ हमारी ये है, ये फ्रांस को श्रेय मिल जाता तो तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। हमारी तकलीफ ये है, भारत तो वैसे भी मीडिएशन वगैरह में कभी भारत रहा नहीं है। मैं हम लोग खुद किसी का, कश्मीर में हम कहाँ किसी का मीडिएशन एक्सेप्ट करते हैं, हम तो कहते हैं दो देशों के बीच में मामला है, हम पंचायत नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है, ये भारत के लिए जो है। एक जमीर भाई फिर से जुड़ गए, दीपक जी आ रहा हूँ, जैनी साहब उसके बाद आ रहा हूँ। अपनी आवामी पूछ रही है कि क्या कर दिया तुमने हमारे साथ, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, और इन्होंने दिमागों में फीड कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, इनके पास कोई आता नहीं है, ये जो है ना वो दुश्मन है, ये किसी के हो नहीं सकते, ये पीछे छुरा घोंपता है और ये पूरी दुनिया में आतंक फैलाते हैं। बस ये बातें इनको रटवा दी हैं कि बेटा 4 टाइम सुबह दोपहर शाम रात, फिर अगले दिन भी ऐसे, फिर उसके बाद भी ऐसे, और जब तक तुम जिंदा हो ऐसे ही याद करते रहो अपने बच्चों को, अपनी दादी को, नानी को, चाची को, मामी को, फूफी को, सबको बताओ। तो भाई इनका यही चल रहा है और ये बेचारे उसी में ही लगे रहेंगे क्योंकि मोदी ने इनके दिमागों में वो डाल दिया, अब उसको वोट चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो उनको पाकिस्तान की जो टॉफी है ना, वो सबसे आसान टॉफी है, वो फौरन से मुंह में डाल देता है और वो जो है चूसते रहते हैं।